एक हो गया हमारी लाइफस्टाइल, जो पोस्चर हो गया, या आजकल को जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, क्या कहीं वो कुछ ऐसा है फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है Yes. उसमें? Before coming to posture, is one more very important thing that you should be doing is drink a lot of water. हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. Yes. 3 to 4 liters of water per day is minimum requirement, even if you are having a sedentary lifestyle. So there are 3 grades of lifestyle. मजदूर होता है, वो heavy work करता है, he should have like 4 to 5 liters of water. So sedentary में minimum 3 liters functioning of the body के लिए ज़रूरी है. उसकी वजह से आपका सारे ऑर्गन, पानी कम होगा तो ढंग से काम नहीं करेंगे. So it starts from the intestines. The intestines will absorb a lot more water from whatever the digestive system has going through itself, because it will conserve it's going to throw the stuff out. स्टूल्स फेंक देने वाला है बॉडी के बाहर, तो उसमें से जितना पानी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बोले हार्ट को ज़रूरी है, तो वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो आपका स्टूल हार्ड हो ही जाएगा. सो नॉट जस्ट हेमरेज एंड ऑल, lack of fiber and lack of fluids are also known to cause colon cancers. So पानी is essential. विंटर्स में पैराडॉक्सिकली हमारे पेशेंट्स बढ़ जाते हैं. गर्मियों में प्यास लगती है, लोग पानी पीते हैं. विंटर्स में प्यास नहीं लगती, लोग बाग पानी नहीं पीते. पोस्चर में, so there is a thing called Kegel exercises. I have a lot of people from the IT industry who have spent 8 to 10 hours a day sitting in front of a computer. So gravity की वजह से there is a pooling of blood that happens. ह्यूमन बीइंग का हार्ट ऊपर है, जबकि आपके अपार्टमेंट में पानी नीचे से ऊपर भेजने के लिए पंप नीचे होता है, अपना पंप ऊपर है. सो वेन्स दे डायलेट एंड देन व्हेन यू मूव अबाउट, वो मसल के बीच में वेन जाती है, तो बिकॉज द मसल मूव्स, वो वेन दबती है और ब्लड ऊपर पुश होता है. दैट इज द पंपिंग मैकेनिज्म अगेंस्ट ग्रेविटी. So if you don't move and if you are sitting in one position for a really long time, you are bound to develop hemorrhoids. Not just posture, the Western commode style of the toilets that we use, sitting in that position itself is going to cause hemorrhoids. Or it's not surprising, all of us would be using our mobiles while sitting or reading newspaper. So you're going to sit there for a long time, and that is also a cause for the best thing to avoid hemorrhoids apart from the lifestyle. Posture की अगर बात कर रहे हैं, तो जो इंडियन स्टाइल में बैठते थे, स्क्वाटिंग पोजिशन जिसे बोलते हैं, that I suggest that to a lot of patients जिसमें सर्जरी नहीं और अवॉइड करवानी है सर्जरी, जस्ट स्टार्टिंग के फेस के हेमोरॉइड्स है, देन आई आस्क देम टू यूज द स्क्वाटिंग स्टाइल वॉशरूम्स. दैट पोजिशन, it's actually yoga. I'm not fully aware of the name of the position, but it is a yoga position. So that is helpful to avoid hemorrhoids. Do not sit for a long time on your pot. Your bowel movements should be finished within 5 to maximum 10 minutes. उसके बाद वो पोजीशन में बैठे रहने से भी हेमोरॉइड्स होते हैं. आप सो दैट इज द पोजीशन. वो आपने जैसे 5 to 10 मिनट्स खाना, आप जैसे अब वो आपने जैसे आई एम कमिंग ऑन द इमेजिनेशंस कि लोग मोबाइल लेके जाते हैं, कुछ लोग रील्स शॉर्ट्स में हो गया, ठीक है, निकल गए. अब कुछ लोग हो सकता है वेब सीरीज का एपिसोड ही देख लेते होंगे बैठे तो उसके लिए टीवी देखो ना. आजकल टीवी में सब हो गया, मोबाइल नहीं, वो जगह आपका वेस्ट निकालने की जगह है, वही करो यार. घर के बाहर आ जाओ, बाहर देखो, एंजॉय करो. इफ यू वांट योर प्राइवेसी, ठीक है, बेडरूम का भी दरवाजा बंद कर दो, फिर करो, और फिर बेडरूम में बैठ के देख लो. सो दैट पोजीशन, इफ एट ऑल यू, आई मीन जुगाड़ नहीं बता रहा हूँ, but if at all you're doing that, you can have a small stool below your feet so that your feet are a little bit up. So that can decrease the incidence of hemorrhoids because of sitting in that position for long.
पैर नीचे नहीं, थोड़े ऊपर रखने चाहिए. Yes, like that. Then that will help. So that is one thing about position. Agar if you have to sit at work for a really long time all throughout the day, then Kegel exercises, K-I-E-G-E-L. Kegel exercises is where वो area के सारे muscle up tight loose. So you have to incorporate that in your habits, just like you are blinking. With that, if you are sitting for a long time, you should be doing Kegel exercises. पड़ोसी को भी पता नहीं चलने वाला है आप एक्सरसाइज कर रहा है. So release, contract release. वो मसल टाइट होने की वजह से जो हेमोरॉइड्स, सो हेमोरॉइड्स आर जंक्शन बिटवीन दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं. अब मैं एनाटॉमी में नहीं जाऊंगा, बट एक लिवर की तरफ ब्लड ले जाता है और बाकी दूसरे सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है. वो दोनों के जहाँ पे मिलाप होता है, देयर आर 6 पॉइंट्स इन द बॉडी एंड वन ऑफ दोज पॉइंट्स इज द हेमोरॉइड्स. So that is why they are bound to have a lot of pooling of blood, and that pooling of blood can be counteracted by doing those exercises. Second thing is every 1.5-2 hours you should take a break. खड़े होके पानी पी लो. जो वाटर कूलर है वहाँ पे आपको कोई आपका दोस्त भी मिल जाएगा. एक गिलास पानी पीते हुए आपका वाटर रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, आपका मूवमेंट भी हो जाएगा. जो पूलिंग हो रहा है, आपका मसल सारे हिलेंगे, देन मूवमेंट ही बंद हो गया ना. जैसे अभी आजकल क्या है कि जैसे एक तो आपने जैसे स्पेसिफिकली जिक्र किया कि स्क्रीन टाइम बड़ा ठीक है. वर्क फ्रॉम होम में तो पहले एटलीस्ट ये होता था, अब वर्क फ्रॉम होम हो गया. कई कंपनीज में ऐसा होता है. पहले कम से कम मूवमेंट तो होती थी, अब तो ये भी हो गया कि मूवमेंट के अब तो घर से बैठ के एक कंफर्ट है. ये आई कैन से इट्स अ कंफर्ट थिंग कि घर से बैठ की बात. अब पहले रेस्टोरेंट में बाहर खाना जाना पड़ता था, वो भी. और अभी तो कई घरों में शायद कुक भी नहीं करते होंगे, बोले ऑर्डर कर लो, घर पे बैठे बैठे आ जाता है. सो यस, आई अग्री. वी हैव look at our older generation people. Dada, my grandfather was completely healthy. ये सब वो लोग they use that squatting style washroom. They used to walk everywhere, lift. तो तब के टाइम ऐसे अहमदाबाद में एक बिल्डिंग में लिफ्ट हुई थी तो वो सब जगह बोले ये बिल्डिंग में लिफ्ट है. So they walked a lot. They had a lot of physical. Another important thing is physical exercise. You have to be active, take up a sport, gym जाना है. That will keep all your muscles and your entire body in tone. It also improves digestion. मैं मेरे पेशेंट्स को नेक्स्ट डे खड़ा करके घूमना चालू करा देता हूँ, कंपल्सरी. वो हिलने लग जाएगा पेशेंट, तो उसकी वजह से सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है. सो ये तो मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ. तो नॉर्मल इंसान ये सब करेगा तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. मतलब आजकल तो कहना पड़ता है भाई थोड़ा चलना फिरना शुरू करो, मतलब बोलना पड़ता है. अब तो आपने जैसे हर चीज़ का जिक्र किया, कोई भी चीज़ हो, ग्रोसरी हो गए, अब आपने एक क्लिक किया 10 मिनट में घर पे. अब तो 10 मिनट वाली सिस्टम चालू हो गई है. मतलब मैं कपड़े पहन के स्कूटर निकाल के भी अगर बाहर गली के बाहर जाना है, that has become an extra effort. This is the exercise that we are doing. Yeah, only finger. So yeah, I agree. वो छोटे थे तब मम्मी दही लेने भी बाहर भेजती थी तो वो हिलते रहते थे. But this point is very valid. My son को I'll make sure my son goes and buys curd from गली के बाहर वाला. हाँ. So जो भी कॉमर्स अलग ही आ गया. ई कॉमर्स नाम सुना था, क्विक कॉमर्स आ गया. अब तो मतलब आप अभी कह रहे 10 मिनट में, कल बोलेंगे 5 मिनट में, तो फिर तो आपको अपनी जगह बाहर ही खड़े रहेंगे. बोले सर क्या चाहिए, बाहर से ही फेंक देते ऊपर से एक ड्रोन. या that makes it, that is going to happen as well. So that makes life, so it's beneficial for the company. So they're going to keep making it easier and easier for you to corrupt yourself.